चलो सीधे स्ट्रेट कैमरे में जरा थोड़ा ठीक आ जाती है वीडियो, वरना फिर कई लोग तो भी लग जाते हैं कि पुट्ठे हथ ना खा रहे होते वो नहीं पढ़ते। मैं कमेंट भी पढ़दा वा ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਫਾਰਿਗ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਾਰਿਗ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ 100 ਕੰਮ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਮ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਨੇ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਐਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਬਸ ਵੀਡੀਓ ਜਿਉਂ ਬਣਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਤੀ ਬਸ। ਬਿਕੋਜ਼ ਤੂੰ ਹੈਗਾ ਵਿਹਲਾ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਉੱਠਣਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨਾ। ਤੂੰ ਤੇ ਬਸ ਇੱਥੇ ਉੱਠਿਆ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠਿਆ ਵੀਡੀਓ ਲਾ ਲਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਗਈ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਛੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਈ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਸ਼ੌਹਰ ਨੂੰ ਫਾਰਿਗ ਹੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਾਰਿਗ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕਿ ਤਿੰਨ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇਰੀਆਂ, ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਸੋਫਾ ਵਾ ਤੇ ਆ ਬਾਥਰੂਮ ਤੇ ਕਿਚਨ ਤੇ ਆ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟੇਬਲ ਹੈ ਬਸ। ਦੇ ਨੋ दैट अब उनसे क्या उनको सब ਬੜਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇਗਾ ਯਾਰ। ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਖੜਖੜੀ ਸਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਦਾ ਕਿਉਂ ਸਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਚਲੋ ਕੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਂ। ਤੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਫਰੇਮ 'ਚ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਇਹ ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸੋਚ, ਓ ਮਾਈ ਗॉड ਦੇਖ ਲਵਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖੇਗਾ? ਇੱਕ ਮਰਤਬਾ ਜਾ ਕੇ ਪਲੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਵਾਂ। ਹਾਂ ਦੇਖ ਲੈ ਕੱਲ ਉਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕੱਲ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੀ ਉਹ ਅਪਸਾਈਡ ਜੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਸਹੀ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਦਾ। ਕਿ ਗੋਚਾ ਵੇ ਗੇਮ 'ਚ ਕਹਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨਰ ਹੈ ਨਾ ਰਸਮ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਉਹ ਟੀਵੀ ਹੋ ਤੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਭਲੇ ਗੇਮ ਖੇਲਣ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਟੀਵੀ ਦੇਖੀ ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਇੱਕ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਅਗਰ ਫੁੱਲ ਸਾਈਜ਼ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ। ਨੋ ਆਈ ਡੋਨਟ ਤੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਟਾਰਚਰ ਕਰਨਾ ਬਈ, ਤੇਰਾ ਡਰਾਮਾ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਡਰਾਮੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਹੁਣ ਲਿਖਣੇ। ਚਾਚਾ ਡਰਾਮਾ ਤੇ ਤੂੰ ਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਹੀ ਚਾਚਾ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਫਿਰ ਕਈ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਚਾਚਾ ਡਰਾਮਾ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਆਂਟੀ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਲਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਸ਼ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। दिस ईयर लग रहा है मेरा वेट तो लूज नहीं होगा। मैं डाइट फूड के साथ साथ दूसरा भी खा रही हूँ, तो अगर मैं डाइट अपनी फॉलो नहीं करूँगी फिर कंप्लेन करूँगी मैं कि मेरा वेट लूज नहीं हुआ। तो आप ये भी सोचें ना कि जब यही तो होता है कि अगर आप डाइट कर रहे हैं तो फिर उसके साथ दूसरी चीज़ें खा रहे हैं तो डाइट डजंट वर्क, एक्सरसाइज मतलब अगर आप अभी भी लेस कैलोरीज अगर कंज्यूम दिन में कर रहे हो, टोटल उसकी कैलोरीज उसको देख के अगर आपने ये खा लिया तो इसमें कैलकुलेशन दिखाओ ना। अब अगर नाश्ते में ये इतना थोड़ा बहुत तो मुझे भी पता है, अगर ये खाया ना अब आपका तुम्हारा जो फूड है उसकी कितनी कैलोरीज का वो बनता है और आज के पूरे दिन की इनटेक में कितनी है तुम्हारी कैलकुलेटेड, उससे कितनी लेस रखनी है वजन को रिड्यूस करने के लिए। ऐसे ही है ना फार्मूला में, टू बी लेस ईटिंग लेस कैलोरीज डेफिशिएंट में होना चाहिए। डेफिशिएंसी जिसको कैलोरीज डेफिशिएंसी कहलाती है कि जिन्हें तो रिक्वायर्ड है। एवरीडे आप ट्राई कर रख रहे हैं, अगर आपको वेट लूज करना है या इवन गेन भी करना, कई लोगों को गेन करना होता है तो उससे ओवर खाएंगे आप, जितनी कैलोरीज रिक्वायर्ड है उससे ओवर खाए। तो ये जो वर्कआउट होता है ना ये आपको वेट गेन करने में भी हेल्प करता है। जब आपके मसल्स आप फिर खाते ज़्यादा हैं तो मसल्स बढ़ते हैं जो भी हैं। लेकिन अगर आप भी मेरी तरह आजकल फॉल ऑफ होते जा रहे हैं, डाइट स्टार्ट कर रहे हैं फिर छोड़ रहे हैं, तो नेवर गिव अप, कीप डूइंग इट। वन डे आप कर लेंगे, वन डे आपको होगा कि नो 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 अब आप जो मर्जी खाते रहे, मैं नहीं खाऊंगी। तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि अपनी कैलोरीज काउंट करूँ। तो 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, तीसरा दिन चौथा दिन है आज। 2 और 2 4 दिन। और आपको ये भी बता दूं एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन 70% डाइट होती है, 30% एक्सरसाइज होती है। तो आज इन्होंने सबने कह के फिलहाल मेरी एक्सरसाइज तो रुकवा दी है, तो फिलहाल तो डाइट पे कंट्रोल। तो ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਜਾਮ ਤੋਂ ਡਰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਤੇਰੀ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਦਰਦ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਯਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਖੜਖੜੀ ਬੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲੈ ਦੰਦ ਤੇਰੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਦੰਦ ਖੁੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड
Ontario report 3,328 cases today. New cases? Ontario de? 3,300. Please stay home, guys. Where are you guys going? जगह ही नहीं बाहर जाने की, फिर आप कहाँ जा रहे हैं? ना निकलो यार, बस एहतियात करो। और अभी मेरी एक फ्रेंड थी, वो पाकिस्तान से आई थी पिछले महीने, हम तो मैं नहीं लूँगी। वो कह रही थी पुलिस 9th डे पे उसको चेक करने आई थी घर पे। यानी जो बाहर से आते हैं तो उनकी क्वारंटीन को चेक करते हैं कि भी इन्होंने क्वारंटीन किया कि नहीं किया। कह रही कॉल तो एवरीडे आ रही थी, हर एक दिन छोड़ के दूसरे दिन, लेकिन चेक करने आए वो बगैर डोर नॉक किया उन्होंने, तो फिर इसने जब चेक किया तो पुलिस थी पूछने आए कि ये घर पे है कि नहीं। नहीं तो मेरे उत्ते गवर्नमेंट ने बड़ा भरोसा किया, मैनू क्यों नहीं इन्नी ज़्यादा पता किया उन्होंने, मेरे लिए सारी खुफिया मालूमात लईयां। ਅਸੀਂ तो इंतजार च रहे भी हुण अज आई पुलिस, अज आई पुलिस। उस वक्त उन्होंने मेरे ख्याल थ्रेट दिया हुआ था तो आए नहीं चेक करने, लेकिन अब ये सख्ती कर रहे हैं, अब ये लोग बाकायदा जा रहे हैं, लोगों को चार्जेस लगा रहे हैं। लेकिन आप ये देखें, आप किसी और की जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। खुदा न खास्ता अगर आपको कोविड था, रास्ते में कहीं लग गया आपको, तो आपने किसी और एल्डर पर्सन को आपने दे दिया होगा, तो उसके आपको देखो कितना गुनाह मिलेगा। तो प्लीज अवॉइड करें, जो रूल रेगुलेशन आपकी कंट्रीज के उनको फॉलो करें, अदरवाइज इसको मजाक ना समझे। वो तो मैं कल ये टिकटॉक पे भी किसी का था कि कोरोना पूरी दुनिया में आया, सिर्फ पाकिस्तान इंडिया में नहीं आया, क्योंकि वो मानते ही नहीं, वो कहते हैं हम देखेंगे तो बताएंगे, नहीं कोरोना नहीं, तो वो ये कहते हैं। तो और ये भी है कि कई जानने वाले बता भी रहे हैं कि करीब लोगों में हो रहा है, और लेकिन जान पहचान वालों में मौतें हो गई बहुत सारे लोगों की, और ऐसा नहीं है कि नहीं है, जैसे पागल नहीं बनी हुई दुनिया सारी। लेकिन बहरहाल एहतियात करनी है। अब जैसे मुझे कौन सा कोई थ्रेट था या मुझे कौन सा कोई, मैं तो 2 हफ्ते घर से अंदर से गया, तुम लोगों से नहीं मिला है कि नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एक बंदे की बात नहीं है कि आप कहो जी बस मुझे बड़े लोगों के मशवरे, अंकल आप बैकयार्ड पे जा सकते हैं, बाहर वॉक कर सकते हैं। मैंने कहा छोड़ दो एक्चुअली ही कैन, वो बाहर जा सकते थे और घर में 2 मीटर की दूरी पे सबके पास घूम फिर सकते थे, बिल्कुल कमरे से नहीं निकले। हम लोग थोड़ा सा स्केर्ड थे क्योंकि उसामा के बेबी होने वाली, सना प्रेग्नेंट थी, सो वी डोंट वांट टू टेक अ रिस्क। खुदा न खास्ता कोई मस्का नहीं, अगर बेबी ना भी होने वाली होती तो भी मैं यही करता। ये ना कहो कि हमने कि बेबी की वजह से किया है। ये जब एक चीज़ आपको करनी चाहिए अखलाकी तौर पे भी, कानूनी तौर पे भी, आप कैसे दूसरों को बीमारी में मुबतला करो। बाहर नहीं जाते लेकिन घर में घूम सकते हैं। घर में भी नहीं मैं घूमा, सिर्फ वो कह सकती हूँ कि बेबी या उसकी वजह से। मैंने कहा नहीं मुझे जरूरत क्या मुझसे मिलने की, 2 हफ्ते सब्र करो सारे। सबसे से जान बनाई मैं उधर क्वारंटीन च रंग बिरंगे खाने खाधे, वो बस वो खाने ਨੂੰ ਤਰਸ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ तो खाने नहीं देखे मैं ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ वो पका के देने सी मैंने। अब इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जल्दी से जाऊँ पाकिस्तान से, फिर वापस आऊँ, फिर क्वारंटीन करूँ तो वही चीज़ें दोबारा कुछ मुझे मिले। It's hard to do quarantine. So ये है कि रूल रेगुलेशन फॉलो करें, अदरवाइज तो हम सारी उम्र लगता है कोविड में ही फंसे रहेंगे। पता नहीं बड़ा ऐसे ही हो गया। अच्छा चलो ये वो इतनी सैड बातें ना करो, बस ठीक है, सबको पता है कोविड का। वो कल अपनी वीडियो लगी है, बड़ी लोगों ने उसका बड़ा फीडबैक आया, जो हमने एज डिफरेंस की उसकी बात की थी। चलो वो तो ठीक है, तो लोगों को पता भी चल गया, और कुछ को पहले पता था, कुछ को और को पता चल गया, और अब वो अपनी जो भी राय उनके रखते हैं, उन्होंने बहुत कमेंट्स दिए। अब इसी रिलेटेड कोई और टॉपिक, वो कहते हैं किसी और बात करो, कि फ़र्ज करें मैं साथ इन-लॉज़ के बारे में आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, क्या किया और क्या नहीं किया, या मैंने कहा मैं इन-लॉज़ के बारे में बोला तो फिर तो बात सारी ख़राब हो जानी, इसलिए मैं तो मुँह बंद रखा तो इन-लॉज़ मैं भी बंदी रखती हूं। मैं तो इन-लॉज़ तो इन्ना तंग और इन्ना पक्के सास ससुर जीण नहीं दिंदे, और उन्हें अगर चलो इस गल नूं जिस तरह के साडे हमारे वहाँ उसमें है भी, ठीक है मानते, मैं ये नहीं कहता हूँ, हमारे अपने घर में भी ये चीज़ें नहीं हुई होंगी। ये डिपेंड करता फिर अपने मिजाज पे, सास ससुर के, और उसके बाद सामने जो नया बंदा, जो वाइफ जो कह लें, जो लड़की बाहर से आई है, उस पर भी बड़ा डिपेंड करता है कि वो फिर कितना उसको सुनती है या कितना एडजस्ट करती है। लेकिन ये बात सही है, अब यहाँ जो यंग लड़कियाँ या जिनकी शादी ताज़ा हुई है या होने वाली, तो वो फौरी तौर पे वो ये कहते हैं कि सारी जिम्मेदारी वो उन्हीं का काम रह गया, वही सब कुछ करे, तो ये दूसरे क्यों नहीं चेंज होते। तो ये चेंज की मिसाल हमें देखें, हमारे घर में हमें कोई पता नहीं है कि ये जहन में कभी नहीं है कि ये बेटी है और ये बहू है,
या ये देवर है और ये अपना भाभी है और वो फलाना दिखाना, हमारे घर में तो नहीं है। अभी अपनी अपनी सोच के ऊपर भी डिपेंड मैं करता ये सोचती हूँ कि अगर मैं लाइबा को काम नहीं कहती तो मैं सना को क्यों कहूँ। है। हाँ, अगर उसे या वो लाइबा नहीं, नहीं, लाइबा अपने शौक से पकाती है। जब कभी सना कहते हैं मुझे पकाना है तो मैं उसे भी कभी मना नहीं करती, मैं कहती हूँ हाँ पकाओ। लेकिन मैंने कभी उसे नहीं कहा कि फोर्स सना नहीं तुम कभी भी। आज पकाओ। अब मैंने आज उसामा, उजैर, लाइबा की ड्यूटियां तो लगाई, मैंने सना की कभी ड्यूटी नहीं लगाई। वो बिल्कुल अपने मर्जी से जो काम करना चाहे, जो कहना चाहे, करना चाहे, हमने कभी उसे मना नहीं किया। वो कह दे कि मुझे आज कुछ पकाना है तो हम कहते हैं हाँ ठीक है पका लो। नहीं, मना वाला सवाल कहाँ से बीच में आ गया? मना का सवाल नहीं है, सवाल ये है कि आप फोर्स उसको करो, नहीं जी तुमने ये 2 दिन खाना रोटी तुमने पकानी है, मतलब एज ए बहू में वो बात करो ना, मना की तो बात लेकिन यहाँ हाँ करते नहीं। मुझ पे थी, मुझे था जब मैं शादी होके गई हूँ, मुझ पे थी रिस्ट्रिक्शन कि मुझे खाना बनाना है, हाँ, उस टाइम पे बनाना है, इतने बजे सुबह उठना है। इट वॉज रियली हार्ड बट कर लिया बंदा जो उसमें होता है। लेकिन ये है कि गिव एंड टेक होता है। जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ कुछ ज्वाइंट फैमिली में बहुत ज़्यादा अगर फायदे हैं तो मैं कहती हूँ फायदे ही हैं, उसमें नुकसान बहुत कम है। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। और जब बंदा ज्वाइंट रहता है ना तो बहुत सारी मुश्किल टाइम में बंदा एक दूसरे के काम आ जाता है। लेकिन आजकल बच्चों का ये है कि, और मैं कहती हूँ कि बच्चों को अकेला रहना चाहिए, मेरा ये अपना पर्सनली है, रहे हम, हमारा हम तो कहते हैं इसलिए कि उनमें एक तो कॉन्फिडेंस आता है, एक उनमें आदत होती है कुछ और काम करने की। अभी तो ये लोग होता है ना कि मम्मा ने कर दिया, पापा ने कर दिया, गार्बेज रख दिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ग्रोसरी कर ली। इनको मैंने अब ये खाने का जो दिया है इनको बनाने का वीक में एक दफा, तो वो इसीलिए दिया है कि खुद ही जाके ग्रोसरी लाओ, खुद ही करो, तो ताकि तुम्हें पता हो कि कैसे करना है जब तुम अकेले रहोगे। तो ये इनकी ट्रेनिंग है। तो वंस ये अकेले रहेंगे तो फिर इन्हें एहसास होगा कि 7 दिन कैसे घर में भी काम करना है, बाहर का काम भी करना है। तो ये एक्चुअली अगर अकेले रहते हैं तो बच्चे लर्न करते हैं काफ़ी कुछ अकेले रहने के साथ। अब यहाँ लोग कहेंगे आप इनकरेज कर रहे हो लोगों को, बच्चों को अलग रहने के लिए। इंकरेज नहीं करे, बेस्ट है कि आप साथ रहें। नहीं रह सकते, हाँ मतलब ज्वाइंट का तो फायदा तो है, अच्छा है कि अगर नहीं हो। अब इसी तरह चाहे उसामा और सना है वो हमने हमारी तरफ से कोई पहले भी कह चुके हैं, ये है कि अगर कहीं पे नहीं बन रही है तो फिर बजाय रोजाना लड़ाई झगड़ों के उस टेंशन से आप हंसी खुशी मिले अलग रह के, फिर फौरी तौर पे अलग अलग। तो ये है कि इससे आपके मेंटल आप सिक भी नहीं होंगे, आप और आपकी फैमिली, ये आप बल्कि आपके रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे जब आप अलग होके फिर मिले जुलेंगे एक दूसरे से। तो अभी मतलब आप ये सोच लें कि अगर आपके घर में रोज लड़ाइयाँ ही हो रही है ज्वाइंट रहने पे, फिर वो वर्क नहीं करता, फिर आपको सेपरेट ही हो जाना बेहतर है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही बिजाइए कि हमेशा से मिलने के लिए जाए, और बेहतर है कि कम मिलो, अलग अलग रह रहे हैं वो भी मिलने आ जाए, बच्चे भी मिलने आ जाए, माँ बाप भी मिलने चले जाएं। और ये स्पेशली ये बात स्पेशली ये हो रही है कि जब ये बच्चों की जो शादियां हो जाती हैं, मैं उनके हवाले से मैं तो उन्हीं से ज़्यादा बात करता हूँ। फोर्सली आप उनको ना रोकें कि नहीं इस घर को छोड़ कर ही जा सकते। और यहाँ ज़्यादातर इशू आमतौर पे माओं का ही आता है, ये मैं बता देता हूँ। माओं को ये मुश्किल लगती है कि वो आई बहू बाहर की लड़की कल आई और बेटे को लेके चली गई, बेटे को फिर शादी वादी नहीं करो, उसको ऐसे ही रखो। वो बस मैं क्या बोलूँ, फिर लोग कहेंगे ऑफेंड कर दिया तो फलाना कर दिया। लेकिन अगर शादी करते हैं तो फिर उसको तमाम जो उसके राइट्स हैं, उसके हुकूक हैं, वो भी दो। और जो आ रही है लड़की उसका भी ख्याल करना है आपने। आप अपने खाली बेटे को नहीं देखो, वो जो शादी होके आ रही है वो उसके लिए कोई बात ही नहीं है। उसको आप जिस तरह चाहो गुलाम बना के रखो, दबा के रखो, ऐसा नहीं है। और आने वाली लड़की के लिए फिर वही बात है, मैं तो सिंपल मिसाल देता हूँ। अगर कोई थोड़े बहुत हमारे जो कोई हमें बहुत सारे लोग बेचारे कहते हैं कि अंकल हम आपकी बातों को और आपकी उसको फॉलो करते हैं, और अगर कोई जो करते हैं तो उन्हीं को मैं कह रहा हूँ, मैं पूरी दुनिया को नहीं कह रहा हूँ। मुझे पता है लोग इस पे भी लोगों को एतराज़ होता है कि हमको समझा रहा चाचा बेटा। मैं उनको कह रहा हूँ जो हमको फॉलो करते हैं। ये देखें, ये मिसाल आपके सामने बैठी हुई है। और कल एक ने अजीब सी बात की, वो कह लगे मुझे तो अब ये नहीं पता लग रहा कि इन दोनों में से, वो कह रहे 12 साल का डिफरेंस है, लेकिन आंटी 12 साल छोटी है या अंकल 12 साल छोटे हैं। मैं इतना खुश हुआ दूसरा जुमला जब पढ़ा ना कि भी अंकल 12 साल छोटे हैं, तो मुझे समझ नहीं लग रही, मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने उसको हार्ट भेजा। नहीं नंबर तो है, लेकिन कि मेरी तुम फीलिंग नहीं देखी तुमने, मैंने उसको हार्ट भेजा फिर बाद में कि मुझे कम 4-5 भेज देने दे। मुझे उसने कहा कि आप मुझे लगते छोटे लगते हो, समझ नहीं आ रही। एक तो तुम्हारा वैसे ही कमजोर हो रहा है, हार्ट सांस इतनी चढ़ती है, 4-5 भेजने तो एक बनता पूरा सांप बंद ही हो जाए।
और सवेर दे टाइम तरह ना खुश मिजाज अच्छे मूड ना बैठा कर, लोग बहुत नापसंद करते हैं। I have so much work, I just can't कहते हैं आंटी ने फोर्सली अंकल बिठा देते हैं। I can't focus in the morning. एक ने तो क्या कि अंकल तो ऐसे कैमरा लगा के ना जैसे शिकारी शिकार च नहीं बैठा होता, That's what he does. जैसे कैमरे का मुंह तैयार होता है, जैसे यहाँ से एंटर हो इतना यकीन करें सड़ा ऐसे हुआ ही करते हैं, ऐसे ही सड़ा हुआ मुंह तेरा As होता soon as I enter in the room, the phone is on. वो एक ने लोग बड़े समझदार और बड़ी गहरी नजर रखते हैं। वो आपको कहते पता है रात को हम लोग पूरा सफाई करके सोते हैं, पर फिर बच्चे देर से सोते हैं तो फिर पूरा, और वैसे तो वो करके जाते हैं, उनके हिसाब से वो करके जाते हैं, मेरे हिसाब से वो नहीं होता तो फिर वो मैं हाँ तो फिर उसमें करो ना तबसरा, इलाज के तबसरे के लिए उसमें। चलो ये तो हो गया ना, ज्वाइंट फैमिली की बात हो गई, हम इकट्ठे रहे, हमने यो रहा। अब इस टॉपिक पे करो ना, एज का डिफरेंस की भी बात कर दी। अब ये बात करो जो लोग पूछ रहे हैं कि इन लाज के बारे में आंटी कुछ बताए कि किस तरह रहना चाहिए, क्या से वो कैसे रही हैं, या मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं ना बोलूँ, मुझे रहने दो बोलने, तो अब खुद तो बता सकती हो ना कि नहीं। नो, तुम भी बोलो क्या बोलना, जो बोलना है तुम बोलो, मुझे तो पता भी नहीं क्या बोलना क्या नहीं बोलना। काम मैंने बता दिया कि काम मैं भी करती थी और करना पड़ता था, वो मेरी जॉब्स थी तो वो मैं करती थी अपने टाइम से। यानी जॉब की तरह थी, कौन सा काम वहाँ बैक कंट्री की बात कर रहे हैं? हाँ मैं जॉब तो नहीं उसको कहोगी, लेकिन वो मतलब जॉब नहीं, मतलब जाहिर है मुझे जो कहा गया था करना है तो फिर वो मैं करती थी टाइम से। यानी हमारे घर में और कोई यानी खातून कोई थी भी तो नहीं ना। जो सबसे बड़े भाई थे वो अलग हैदराबाद रहते, माँ बाप से वो दूर रहते थे, तो वो इस घर में देखा जाए तो यही वालदा थी हमारी, या आसवा थी बहन, जो उसकी भी शादी होगी तो जाहिर है फिर वो जिम्मेदारी तो इन्हीं पे आ गई ना, जो हमारा वहाँ का कल्चर भी कह लो और ज्वाइंट फैमिली सिस्टम जो कह लो। तो अब होते हुए तो बहुत, ये तो अब दौर ये आ गया, ये मासियाँ रखना शुरू कर दी। यहाँ तक कुकिंग के लिए एक दो जानने वाले दोस्त मेरे, वो कुक रोटी पकाने वाली मासी अलग है, खाना पकाने वाली जो, और झाड़ू पोंछे वाली अलग है, तो फलानी अलग है। अब तो ये रिवाज चल पड़ा। मुझे खुद बॉदर कर रहा है क्योंकि टू मच गोइंग ऑन। उन्हें मैनू इतना लगता कि मैं चाइना च बैठा हाँ, तेरा रंग देख के ना मैनू और कोई प्रॉब्लम नहीं है। आया हुआ था मैंने कहा इसको रिसाइकिल क्या करना है, इसको पहन लो रात को। गाली बुलाती मैं की कहने, गाली बुलाती तू चल ਭੁੱਲ ਦੇ ਤੂੰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ नहीं भूल सकता, ये तो गारंटी है, पत्थर पे लकीर है। ये जो ड्रामा करता है ना मैं भूल गया, ये झूठ है। ये वाकई सब याद होता है, ये जो इनको होता है कि फिर मेरी बात में कोई बोले ना वो जेहन से निकल गई। वो इसीलिए कहता हूँ पिटकार जो बरस वो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जेहन से निकल जाती है ना, फिर याद वो टेम्पो टूट जाता है। मैं कहता हूँ जब मैं बोल रहा हूँ तो मेरे पे ब्रेक नहीं लगाया करो, मुझे बोलने दिया करो। अब वो अच्छा तुम बता दो कि मैं क्या बात कर रहा था, फिर मुझे याद आ जाए। तो मैं तो 100% होता, मुझे तो ये नहीं पता कि मैंने इससे पहले क्या कहा। नहीं तो इसका मतलब तुम मेरी बात सुनती नहीं हो, और मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। भले बोलते रहो, मैं तो अपनी बात नहीं याद रहती। अच्छा मैंने ये कहा था, मुझे तो याद नहीं। मैं तो खाने पकाने का उस दिन उसैर कह रहा था, केक खाने मिठाई खानी, ये नहीं तू भूल दी। नहीं भूल जाना तो पतली ना हो जा, ये चीज़ें सब याद रहनी है, बाकी भूल जाओ पतली ना हो जा। ओके बस हो गई टॉप, चलो खत्म, बस हो गई टॉप। नेक्स्ट डे एंड इतने ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦਾ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਡਿਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸਾਰੀ। ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸਟ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹ ਰੱਖਣੀ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ, ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਬੋਲੇ ਬਕ 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 ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਲਾ ਦਵਾਂ। ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧ ਤੇ ਕੋਈ ਲਰਨਿੰਗ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਿੱਤੋਂ ਕੋਈ क्या इंस्पायरेशन जिस चो किसी लोगों को कोई इदां दी तो कोई गल कीती कोई नहीं। बाकी हुण मैं होर की कहां, गल ही खत्म हो गई। अब बोल पा तेरे को तू चेते कर ला कुछ गल। हाँ चल हुण गुब्बारे बनाना शुरू कर देते बगे तू यकीन करे। आप लोग कमेंट लिखा करें उसके लिए, सो हमें तो मुझे तो ये कमेंट का तो बता रहा हूँ, जो लोगों ने कमेंट्स में कहा ये बात करो इस टॉपिक पर, वही तो मैं बता रहा हूँ, और मैं क्या बात करूँ। बस यही है, और क्या। मुंह बंद वासी ना मेरे कैमरे दिखाई, मुंह खोल के तुझे इधर जिदा हिप्पो नहीं मुंह खोल रहा कभी देखा तू दरियाई घोड़ा जिन्हों कहते वो कभी मुंह खोलता देखा वासी ने? यकीन कर मिलता जुलता तेरे नाल, एक तो हुंदा मुंह एडा सारा होता करके बोल पूरे तो पूरी ये नहीं बकरा इतना मुंह चला जाए। ये इसीलिए किया गया कि मुंह ते हमेशा जमाई आवासी आए ना हाथ रखना चाहिए, कभी खुला मुंह ना चलो। बोर खातून पता नहीं मैं 32 साल इस बोरियत में कितना कड्डे मैंने पता। जिथे मैं चुप किया बा उथे गल खत्म।
ਇਹ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਹਮਕੋ ਬੋਲने नहीं देता था कई दोस्तों ने भी शिकायत पे बोल अब यार मैं नहीं बोलने अच्छा मैं हूँ चुप हूँ तुम बोलो वो कहते अब हमारे होता पास भी यही है, फोन आता है जैद बोल 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 के हमें पता नहीं चलता कि अगले इंसान ने कुछ बोला कर नहीं बोलता है बीच में तुम लोगों को अब मैं स्पीकर पे सुनाऊं बातें हमें खुद पता होता है क्योंकि जब बच्चे यहाँ से कॉल करते हैं हम अभी हमने हेलो किया नहीं एंड यहाँ से बच्चे करते रह जाएंगे पापा पापा एंड पापा ठप बंद एंड गॉन। नहीं इस तरह नहीं इन्ना भी बदतमीज नहीं का मैं मतलब मैं इन्होंने सुनता नहीं गया That's true। अच्छा चलें ठीक है, आज फाइनल बच्चे आएंगे ना, नो 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 सुनो एक वीडियो में बच्चों ने कहा पहले भी ये कह चुके अभी हैं। फिर कंफर्म नहीं करें। ये पता लेकिन ये पता नहीं अब और मैं क्या कहूँ फॉर्मेलिटीज करूँ अच्छा भाई फिर मिलेंगे उसके बाद He doesn't listen पूरा के क्या कहना था उन्होंने, अब वो बच्चे करते हैं पापा पापा एंड पापा ने ठुक फोन रख दिया क्योंकि अपनी सुनाई उन्होंने कहानी और कहानी सुनाई अब इसको तुम हैंग अप नहीं जो मेरा वो लफ्ज नहीं तुम सुनते जो मैं अच्छा भाई ठीक है फिर करेंगे हाँ, तो वो तो कह रहे होते हैं सुना अच्छा भाई ठीक है करेंगे बात अब फोन रख दिया मैंने अब इसमें इसको तुम हैंग अप कहोगे कि मैंने मुंह पे मारा फोन तुम लोगों की सोच गलत है सोच नहीं गलत है, करते ही हैं। आज आपको दोबारा रिवाइंड करवाएंगे बच्चों से पूछ के कि क्या होता है जब वो कॉल करते हैं पाकिस्तान में तो क्या होता है। वो तो एक दिन वीडियो में बताया तो है और कितनी दफा बताओगे उसे एक वीडियो में बताया दोबारा बताएंगे ना, कंफर्म हो जाता है नहीं तू रहने दे कि आप दूसरों को बोलने नहीं देते हैं तो कंफर्म है। मेरा कहना ये है कि मैं अगर नहीं बोलता हूँ तो फिर सामने वाला भी तो नहीं बोलता ना। तुम तो बोलते अच्छा लाइट से बैठे हैं ना आला मैं हूँ चुप हो गया हूँ तू बोलना मैं दे हूँ तू बोल मैं तो वैसे ही नहीं बोलती, मैं तो पता है मेरा तो वैसे ही नहीं बोलती। बस हूँ गल खत्म हो गई यानी हूँ बैठे हैं और इतनी की देरी खामोश रह सकते हैं बस। नहीं मैं तो साबित कर रहा कि मैं चलो अगर मैं चुप हो गया हूँ कोई टॉपिक तो तू गल स्टार्ट कर छेड़ कोई भी गल तो मैं नहीं बोलता बस मैं भी नहीं बोलूंगी खामोश की तू एकदम बिटर बिटर ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਦੀ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਉਮਰ ਚਲੀ ਗਈ ਇਹ ਚੰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਦਾਂ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਉਮਰੇ ਵੱਡੇ ਆ ਗਏ ਲੈਲਾ ਮਜਨੂ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਹੀ ਨਾ I'm tired looking at the camera। ਦੇਖਣ ਦਾ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਸੀ ਬਤਾ ਉਦੋਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਸ ਇਦਾਂ ਕਰ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹਿੰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮੀ ਹੀਰੋਇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਬੈਠੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਉਹ ਕਰ ਦੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਅੱਜ ਤੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਹੈ ਕੀ ਯਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਵੀ ਬਸ ਸਵੇਰ ਦਾ ਬਕੀ ਜਾਣ ਡਿਆ ਬਸ ਮੈਂ I don't know, I don't have right now sir। अगर आएगी दिमाग में मैं कर लूंगी, अभी तो दिमाग में कुछ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ याद आएगी उਦੋਂ ही करूंगी ना, जबरदस्ती तो नहीं याद करा सकती। That's what the whole point। ਚਲ ਉਹਦਾ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੈਸੇ ਚਲ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਾਸ਼ੁਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ।